कर दिया मैम लाइव। थैंक यू। Good afternoon, everyone. In the last class, we were discussing about the e-payment systems, how you can make payments using the internet and electronic devices. There we also discussed many types of e-payment systems, various methods. So we discussed about the banking cards, USSD codes, and many other. Then we also discussed that what are the types of digital payments, and we discussed that what are the benefits and the risks involved whenever you make any payment using the internet or using your device like your laptop, your computer, or your mobile phone. Today we will be doing some tests of reliability, whether a particular payment system is reliable or not, whether you should be going for that particular system, that particular method or not. Okay, so we'll be discussing these two tests, acid test and ICS test are there. Then after that we'll be discussing upon the electronic cash, what are the smart cards. Then we'll discuss what are the benefits of smart cards. Then we'll discuss that what is UPI, who all are the participants in the UPI, what is the benefit of using UPI. Then we'll be discussing about the NPCI. So this is the scope of today's class. And without wasting further time, let's start with the tests of reliability. The test for reliability means if you are using any payment system, then how much dependable is that? How much trustable is that? If you are making any payment, you have to make it sure that the money is being debited from your account and it is credited to another account. Suppose it gets debited from your account but doesn't get credited to another account, that means it lacks the reliability. You cannot depend upon that particular payment system. So that is why we have come up with two tests, and if a particular payment system passes these two tests, then we can say that that particular payment system is reliable and we should be going for that. The first test is the acid test. Now the acid stands for the atomicity, the consistency, isolation, and durability. Atomicity and the consistency, isolation, and durability tells you that you can go for a particular payment system, be it a card payment system, any UPI payment system, any check or cash payment. Okay, so atomicity stands for the meaning of atomicity is that a transaction must occur completely or not at all. That is what I just discussed. Suppose I am making any payment to you. Suppose the payment, the money is being deducted from my account, but it has not been credited to your account. That means it is incomplete. If you are going for any payment system, you have to make it sure that it happens completely. सपोज एक तरफ से पैसे कट जाएंगे, दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, तो वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा. You should not be going for a payment system that is not complete in its manner. जितने पैसे मैंने आपको भेजे हैं उतने के उतने पैसे आपको मिलने चाहिए. For example, a transfer of 100 rupees must result in the amount credited from the account and debited to another. If one action fails, the whole transaction should be aborted. यानी आपने देखा होगा पेटीएम से, गूगल पे से जब आप पेमेंट करते हैं, बाय चांस अगर पैसा नहीं गया है दूसरे के अकाउंट में,
तो वो पैसा आपको रिफंड हो जाता है। तो एटॉमिसिटी कहती है कि यू हैव टू मेक इट श्योर कि जितना पैसा आपके अकाउंट से कटा है उतना ही पैसा दूसरे अकाउंट में जाए, और अगर वो नहीं जा रहा है तो एटलीस्ट वो रिफंड हो जाए। एक पेमेंट सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहां पर या तो रिफंड हो जाए या फिर वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो जाए। तो फर्स्ट टेस्ट ये कहता है, टेस्ट का पार्ट है। सेकंड है कंसिस्टेंसी। Consistency means that all parties involved must agree to the exchange. That means if I agree to purchase something in 100 rupees, then you must also agree for the same amount for the same purchase. Suppose you are saying that you would be selling that particular article for 300 rupees and I would be saying that I would purchase it for the 100 rupees. Then the payment would not be settled down. मैं 100 करूंगी, आपको 300 चाहिए, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं होगी। So you have to make it sure that there is consistency in the choice, in the transaction. For example, before X buys a product from Y, X must agree to buy it for 100 rupees and Y must agree to sell it for the 100 rupees. That means you have to agree on the same amount and then only you can make the payment. Then we have the third element in the test, that is isolation. Isolation means that each transaction is independent of any other transaction. That means this transaction, this payment should not be dependent upon any prior transaction or the forthcoming transaction. मैंने अगर आपसे कोई सामान लिया है, कोई आर्टिकल लिया है, कोई प्रोडक्ट लिया है और उसके बदले में आपको पैसे दे रही हूँ, तो वो ट्रांजैक्शन एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए। आपने प्रोडक्ट डिलीवर किया, मैंने आपको पेमेंट कर दी, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि अगर मैं ये चीज लूंगी तो ही वो मिलेगा मुझे, या फिर आगे मुझे कोई पेमेंट दोबारा करनी पड़ेगी जब वो पेमेंट कंप्लीट होगी। तो एक पेमेंट, एक आइडियल पेमेंट क्या होती है, जो आइसोलेशन में काम करे। दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। Each transaction is treated here as a stand-alone episode. Yani it has nothing to do with the prior payments and neither with the prior nor with the coming payments. Next is the durability. It must always be possible to recover the last consistent state of reverse, the state of an exchange. ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि अगर यू आर नॉट हैप्पी विद अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन तो वो हमेशा से रिफंड होना चाहिए। सपोज मैंने गलती से कोई पेमेंट कर दी है या फिर मैं उस पेमेंट के लिए राजी नहीं थी, किसी वजह से हो गई है, या फिर आई एम नॉट हैप्पी और आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, देन दैट पेमेंट सिस्टम शुड अलाउ मी टू गेट द रिफंड। जैसे आपने देखा होगा, if you are making a payment through your wallet or your account on Amazon or Myntra or any other e-commerce channel, and suppose you are not happy with the product, so they would get it exchanged or they would get it returned. तो आप वो दोबारा प्रोडक्ट उनको दे दो तो आपके अकाउंट में दोबारा पैसे आ जाएंगे। So this is known as the durability, कि पैसा अगर गया है तो वापस भी आ जाना चाहिए अगर आपको वो प्रोडक्ट या सर्विस पसंद नहीं आई। Although it depends upon the policy and the type of the product you are purchasing. So this is the acid test. If you have any question, you can ask. Let me check the Q&A box for your questions. If you have any question from the acid test, you can just ask. Otherwise, we'll move towards the ICS test.
Okay, I think there is no question. Let me go back to my PPT for the next test. Now we have the ICS test. ICS test stands for interoperability, conservation, economy, and the scalability. Now let's discuss what these elements are. First of all, we have the interoperability. Interoperability means that the ability to move back and forth between the different systems. That means suppose I am making a payment using my laptop and suddenly my laptop doesn't work. So I should be able to use my mobile phone or any other device so that I can make the payment. या फिर अलग अलग systems मुझे use करने हैं. Suppose I was making payment using my UPI, but suppose my server is busy, my banker is busy, and that is why I am not able to make the payment using the UPI. So I should be able to move to any other kind of system. So this is known as the interoperability, that you should be able to move from one place to another easily. It should allow you to log into different systems. Okay. Next element is the conservation. Conservation means that how well money holds its value over a period of time. That means एक किसी मेथड में अगर हम मनी की वैल्यू देखें तो कितना उस मनी की वैल्यू बढ़ती है और कितनी उसकी कम होती है. अगर मैं कैश की बात करूं, सपोज मैं कैश से पेमेंट कर रही हूँ तो कैश की कंजर्वेशन वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है. अगर मैंने अपने अलमीरा में पैसे रखे हैं तो क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसका मिलेगा मुझे? नहीं. अगर आज मैंने 500 रुपीज़ रखे हैं बैंक में, सॉरी अपने अलमीरा में, तो 10 साल बाद भी 500 रुपीज़ ही रहेंगे. लेकिन अगर मैं बैंक में रखती हूँ तो उस पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी होगा और मुझे उस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा. तो कंजर्वेशन का मतलब है कि एक पेमेंट सिस्टम ऐसा होना चाहिए दैट कीप्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन द माइंड. ओके. देन नेक्स्ट वी हैव इज द इकोनॉमी. इकोनॉमी मीन्स कि आपको एक चीज को रखने के लिए कितना पैसा देना पड़ रहा है या एक ट्रांजैक्शन करने के लिए कितना पैसा लग रहा है. अगर हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं तो हमारे कोई चार्जेस नहीं लगते. इसी तरीके से आप कैश दे रहे हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे. लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो अगर आप वो विद इन दैट पीरियड नहीं करते हैं पेमेंट, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते हैं, तो उस पर आपको एक चार्ज देना पड़ेगा. या फिर आप वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर भी कभी कभी चार्जेस लगते हैं पर ट्रांजैक्शन. सो इकोनॉमी यानी एक पेमेंट सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर आपको चार्जेस ना देने पड़े. नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी. Scalability tests refers to the ability of the system to handle multiple users at one time. That means एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो हैंग ना हो जाए अगर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस उसी टाइम पर हो रहे हैं. ऐसा ना हो कि अगर 3 जने एक ही साथ पेमेंट कर रहे हैं तो उनमें से किसी की पेमेंट रुक जाए. तो स्केलेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए जिससे इजीली आपकी पेमेंट को प्रोसेस किया जा सके. तो ये कुछ टेस्ट हैं, ICS टेस्ट और एसिड टेस्ट. अगर आपका पेमेंट सिस्टम इन सब पे खरा उतरता है तो यू कैन से दैट योर पेमेंट सिस्टम इज efficient and effective. अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है एसिड टेस्ट से या ICS टेस्ट से, यू कैन आस्क.
Is there any question from acid or ICS test? Okay, let me move towards the next slide. Now we have the electronic cash. What is electronic cash? eCash was a digital based system that facilitated the transfer of funds anonymously. That means it is a kind of anonymous cash या anonymous e-payment. हमने कल जो हमारी लास्ट क्लास थी हमने उसमें डिस्कस किया था, ये देखिए कि हमने आइडेंटिफाइड ई मनी और एनोनिमस ई मनी के बारे में बात की थी। तो आइडेंटिफाइड ई मनी ये होता है जिसमें आप पता लगा सके कि कहाँ से पैसा जा रहा है, फिर किसके पास गया और फिर किसके पास गया। एनोनिमस ई मनी होता है जिसमें आपको पता नहीं चलता कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कैश कहते हैं। और इसमें फंड्स ट्रांसफर किए जाते हैं एनोनिमस। A pioneer in cryptocurrency, its goal was to secure the privacy of individuals that use the internet for micro payments. यानी कुछ पेमेंट्स करने के लिए लोग जब अपनी पहचान नहीं बताना चाहते, क्योंकि अगर मैं पेमेंट कर रही हूँ क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, अपने अकाउंट से, अपने ई वॉलेट से, तो कहीं ना कहीं मेरी पहचान उनके पास जा रही है, क्योंकि मेरा आधार नंबर हो सकता है उनके पास हो, मेरा अकाउंट नंबर उनके पास जा रहा है, मेरा नेम जा रहा है, मेरी IFSC कोड जा रहा है, यानी पूरी आपकी डिटेल्स जाती हैं। लेकिन जब क्रिप्टो करेंसी हम यूज़ करते हैं तो उसमें आपको कैश की तरह वो काम करता है। जब हम किसी को कैश देते हैं तो हमें अपना नाम तो नहीं बताना पड़ता, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी काम करती है। तो जहाँ पर लोग अपनी प्रिवेसी को सिक्योर करना चाहते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कैश का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश was created by Dr. David Shaw under his company DigiCash in 1990. Though there was interest in the platform from large banks, eCash never took off and DigiCash filed for the bankruptcy in 1990. So it all started in 1990 where the Dr. David Shaw, he started a company known as DigiCash. He was the one who came up with the cryptocurrency or the electronic cash for the first time. But unfortunately, it did not work, and that is why it had to go for the bankruptcy in 1998. The DigiCash, along with its eCash patents, was eventually sold off. In 2018, the Xiaom launched a new startup focused on the cryptography. In 1998, it went for the bankruptcy, but later on, it again started in 2018 and they launched a new startup on the cryptography. Here we have some of the key takeaways जो हमने अभी पढ़े हैं. Smart cards. इलेक्ट्रॉनिक कैश के बाद हम पढ़ेंगे स्मार्ट कार्ड्स. A smart card is a special type of card like a device which contains an integrated circuit chip embedded on it. यानी एक स्मार्ट कार्ड आपने देखा होगा, एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, उसके अंदर एक चिप डली हुई होती है गोल्डन कलर की. आपने देखा होगा जैसे आपके सिम कार्ड पर होती है वैसी एक चिप होती है. The IC chip can be a microprocessor with a memory or just a memory circuit. या तो मेमोरी कार्ड की तरह होती है जिसमें सिर्फ मेमोरी हो, या फिर उसमें IC चिप भी हो सकती है जो एक माइक्रो प्रोसेसर की तरह काम करती है. In simple layman's word, a smart card is the card which can be used to exchange the data, store it and manipulate it. तो हमारे पास अलग अलग तरीके के स्मार्ट कार्ड्स होते हैं. कुछ स्मार्ट कार्ड्स तो आपने देखा होगा जैसे हमारा मेट्रो का कार्ड होता है,
वो तो सिर्फ स्टोर करता है डेटा, वैल्यू को स्टोर करता है। इसी तरीके से मॉल्स में जब हम जाते हैं तो उनके फूड कोर्ट के लिए कुछ कार्ड होते हैं जिसमें आप पहले पेमेंट करते हैं फिर उसको रिडीम कर सकते हैं। गेम्स के लिए कार्ड्स होते हैं, आप उसको रिफिल करा लीजिए, रिचार्ज करा लीजिए और उसके बाद गेम्स खेलने के लिए यूज कर सकते हैं। तो वो तो सिर्फ स्टोर करते हैं वैल्यू को। फिर हमारे पास कुछ इस तरीके के स्मार्ट कार्ड होते हैं जैसे हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है और उसमें मैनिपुलेट किया जा सकता है डेटा। जैसे आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, आप अपना अमाउंट देख सकते हैं, आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनिपुलेशन ऑफ डेटा में आती है। तो कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक्सचेंज ऑफ डेटा के लिए होते हैं, जैसे मेट्रो कार्ड है या फिर गेम्स वाले कार्ड हैं। कुछ होते हैं जो मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा को, जिससे के यूज से आप कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो ये होते हैं स्मार्ट कार्ड्स जिसमें एक चिप डली हुई होती है। अब तो वाईफाई वाले भी आ गए हैं। इसमें लिखा है हाउ डज द स्मार्ट कार्ड वर्क्स, ऑल्दो आई हैव एक्सप्लेन कि वो कैसे काम करते हैं। अ स्मार्ट कार्ड इज कनेक्टेड टू अ होस्ट कंप्यूटर और अ कंट्रोलर वाया कार्ड रीडर। तो जब भी स्मार्ट कार्ड हम ऐसे ही तो पढ़ नहीं सकते, सपोज मेरे पास एक स्मार्ट कार्ड है तो मैं क्या अपने कंप्यूटर में लगा के पढ़ पाऊंगी उसको? नहीं। तो उसके लिए एक हमें स्मार्ट कार्ड रीडर चाहिए होता है। जैसे आपने देखा होगा, आप पेमेंट करने जाते हैं आप उसकी मशीन में इंसर्ट करते हैं, उसमें एक स्मार्ट कार्ड रीडर लगा होता है, या फिर एटीएम जाते हैं वहाँ पे भी एक स्मार्ट कार्ड रीडर लगा होता है। तो हमें स्मार्ट कार्ड की इंफॉर्मेशन को रीड या मैनिपुलेट करने के लिए एक स्मार्ट कार्ड रीडर की जरूरत होती है, which gets the information from the smart card and accordingly passes the information to the host computer or the controller. तो जैसे ही हम उसको स्मार्ट कार्ड रीडर में इंसर्ट करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से खींच लेता है। हमारे कार्ड में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी रीडायरेक्ट करता है हमारे बैंक को, अगर डेबिट या क्रेडिट कार्ड की बात करो, और वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि इतना पैसा है इसमें, ऐसे आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ऐसे आप विड्रॉ कर सकते हो। वो सारी इंफॉर्मेशन जो है एक स्मार्ट कार्ड रीडर के थ्रू कंप्यूटर में जाती है और कंप्यूटर से दोबारा वहाँ पर आती है। सो दैट इज हाउ द स्मार्ट कार्ड वर्क्स। Here we have the two types of the smart cards based on the connection to the smart card reader. स्मार्ट कार्ड रीडर पे वो कैसे कनेक्ट किया जाता है उसके बेसिस पे हमने दो कैटेगरी बनाई है स्मार्ट कार्ड की। Firstly, we have the contact smart card. This type of smart card consists of electronic contact which are used to connect to the card. तो जो कॉन्टैक्ट स्मार्ट कार्ड है, जैसे इसका नेम बता रहा है आपको, उसमें क्या होता है कि आप मशीन के अंदर इंसर्ट करते हैं और फिर वो स्मार्ट कार्ड वर्क करता है। अब कुछ हमारे पास कॉन्टैक्ट लेस स्मार्ट कार्ड्स भी आ गए हैं जिसमें आपको इंसर्ट नहीं करना पड़ता, आपको बस ऐसे वेव करना होता है, उसका एंटीना होता है, उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू वो सारी इंफॉर्मेशन को फेच कर देता है। सो दे आर नोन एज द कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड्स। हमारे पास दो और तरीके के स्मार्ट कार्ड्स हैं। Two types of smart cards based on their functionalities and the configuration. एक तो memory cards हैं. These are the cards which only consist of memory circuits. It can only store, read and write the data to a particular location. The data cannot be processed or manipulated. यानी कुछ memory cards होते हैं जिसके थ्रू हम स्मार्ट कार्ड की इंफॉर्मेशन को सिर्फ रीड कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं या उस पर राइट कर पाते हैं, लेकिन वो मैनिपुलेट नहीं हो पाता, प्रोसेस नहीं हो पाता, बस इसमें क्या है वो हमें पता चल जाता है, तो उसको हम मेमोरी कार्ड्स कहते हैं। दूसरे हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कार्ड्स जिसमें पूरा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है और उसको हम प्रोसेस भी कर सकते हैं। These cards consist of microprocessors embedded
onto the chip in addition to the memory blocks. It also consists of specific sections of files, with each the file associated with a particular location function. The data in the files and the memory location is managed via an operating system, which can be fixed operating system or dynamic operating system. It allows for the data processing and manipulation and can be used for the multifunction. तो हमारे पास कुछ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कार्ड्स होते हैं जिसमें वो मेमोरी कार्ड की जगह वहाँ पे एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जो कंप्यूटर की तरह काम करता है, और उसमें हम मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा को चेंज कर सकते हैं, डेटा से सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और हम उससे पैसे वगैरह भी विड्रॉ कर सकते हैं. सो माइक्रो प्रोसेसर एक थोड़ा हाई लेवल है, मेमोरी कार्ड एक बेसिक लेवल है. Now, what are the 5 areas of smart card application? आजकल कहाँ स्मार्ट कार्ड्स यूज हो रहे हैं? सो टेलीकम्युनिकेशंस में यूज हो रहे हैं. तो हमारा जो सिम कार्ड होता है वो भी एक स्मार्ट कार्ड होता है, इसलिए हमने लिखा है टेलीकम्युनिकेशंस में यूज हो रहे हैं. डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, जैसे हमारे सेट टॉप बॉक्स में एक कार्ड लगा होता है, वो भी एक स्मार्ट कार्ड है. आप रेलवेज में जा रहे हैं या फिर आप शॉपिंग करने जा रहे हो, शॉपिंग वाला नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन अगर आप रेलवेज में जा रहे हो या फिर आप गेम्स वगैरह खेलने जा रहे हो, उसमें जो यूज़ होते हैं कार्ड डोमेस्टिक पर्पस के लिए वो यूज़ होते हैं. ई कॉमर्स एंड रिटेल में आपने देखा ही है, जैसे रिलायंस फ्रेश है, लाइफस्टाइल है, उनके कार्ड बना होता है जिसको आप स्वाइप कर तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं एक्स्ट्रा, उसमें यूज़ होता है. बैंकिंग कार्ड्स हैं हमारे, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स. कुछ गवर्नमेंट एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे हमारे आधार कार्ड है, उस पर एक नंबर होता है, चिप नहीं होती, बट वो स्मार्ट कार्ड नहीं कहलाएगा, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ एप्लीकेशंस में इस तरीके के कार्ड्स भी यूज होते हैं गवर्नमेंटल ऑफिसेज वगैरह में, जहाँ पे इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, वो गवर्नमेंट के कार्ड्स होते हैं. और सिक्योर फिजिकल एक्सेस, यानी आप जैसे मेट्रो में आपको जब भी जाने दिया जाता है जब आपके पास कार्ड होगा या फिर टोकन होगा, तो किसी भी चीज़ के फिजिकल एक्सेस के लिए आपको हो सकता है कार्ड की नीड हो, तो वहाँ पे भी स्मार्ट कार्ड्स को यूज़ किया जाता है. तो दैट इज हाउ द स्मार्ट कार्ड्स आर बीइंग यूज्ड. अब स्मार्ट कार्ड्स में से कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. I've got one question that स्मार्ट कार्ड्स में पिन डलता है या नहीं. तो आपने देखा है डेबिट क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको पिन डालना पड़ता है, लेकिन अगर आप रेलवेज का या मेट्रो का आप यूज़ कर रहे हैं कार्ड, या फिर गेम खेलने जा रहे हैं मॉल में तो वहाँ पे कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई पिन नहीं डालना पड़ता. तो दोनों तरीके के हो सकते हैं. Okay, if there is no question, let's move to the next section. Unified Payment Interface, UPI.
In last class also we discussed something upon the UPI, how UPI is used, what are the different applications. Today again we'll emphasize upon the unified payment interface. A unified and payment interface is a system that powers multiple bank accounts into a single mobile application. That means you just need to have one application for all of your bank accounts. Like suppose I have Google Pay, so I can enter my SBI's account number there, I can feed my other bank's accounts, and there I can use that particular single application to make payment from my either of the account, be it SBI or be it any other bank. So a single mobile application is needed for the multiple bank accounts. Merging several banking features, seamless fund routing, and merchant payments into one hood. It also caters to the peer-to-peer collect request, which can be scheduled and paid as per the requirement and the convenience. So यहाँ पर आप अलग अलग बैंकिंग फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं. जैसे कुछ बैंक्स कुछ फीचर देते हैं, कुछ फीचर ही दे पाते हैं इंटरनेट बैंकिंग में. तो यहाँ पर आपको सेवरल बैंकिंग फीचर्स मिलते हैं. आप एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और बहुत कन्वीनियंस के साथ, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता. इंस्टेंटली पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चले जाते हैं. यूपीआई है. अब हमने यहाँ पर लिखा है कि यूपीआई कैसे और बाकी बैंकिंग सिस्टम्स और पेमेंट सिस्टम से अलग है. Immediate money transfer through mobile device round the clock 24/7 and 365. ये एक बहुत अच्छा फीचर है यूपीआई का कि आप उसमें 24/7 किसी भी समय, रात के 12 बजे, रात के 3 बजे, सुबह के 5 बजे, कभी भी जब भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं. 365 डेज में आज छुट्टी है जब भी आप पेमेंट कर सकते हैं. संडे को भी कर सकते हैं, दिवाली पे भी कर सकते हैं, होली पे भी कर सकते हैं. सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग डिफरेंट बैंक अकाउंट्स. ये हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ एक ही एप्लीकेशन की नीड है. ऐसा नहीं है कि मेरे 4 बैंक अकाउंट हैं, 4 अलग अलग बैंक्स में हैं, तो मुझे 4 अलग अलग एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है. एक सिंगल एप्लीकेशन, एक नंबर के थ्रू आप अलग अलग बैंक अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अलाइन विद द रेगुलेटरी गाइडलाइंस. यानी पहले तो आपको अपने फोन का लॉक खोलना पड़ता है, उसके बाद एक ये पिन और मांगता है. तो यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है यहाँ पर, और उसमें वो आपसे कांटेक्ट करके इंश्योर करते हैं कि आप ये पेमेंट करना चाह रहे हैं, ऑथोराइज्ड पेमेंट है या नहीं, और उसके बाद ही पेमेंट की जाती है. वर्चुअल एड्रेस ऑफ द कस्टमर for pull and push provides for the incremental security, with the customer not required to enter the details such as card number, account number, IFSC, etc. That means आपको सिर्फ एक VPA की ज़रूरत होती है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस. उससे आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं. एक यूपीआई आईडी की नीड होती है, उसको यूपीआई आईडी कह सकते हो, वीपीए कह सकते हो. उसमें आपको अपना नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं है. किसी से पेमेंट लेनी है, सपोज मैं किसी शॉप पर गई, मुझे उससे कुछ रिफंड लेना है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपना नाम या अपना अकाउंट नंबर किसी को रिवील करूं. सो आई विल जस्ट गिव माय यूपीआई आईडी और वीपीए, and that person can transfer the money on the same ID without asking for my account number or my name or my IFSC details. Bill sharing with friends. Now many of the applications
are coming up with a feature where you can directly share the bill with your friends. Suppose you went to a restaurant, you made the payment of 3000 rupees. There were 6 people, so you have to collect 500 rupees from every friend of yours. So that particular application would allow you to ask money from your friends, and if they also have the same application in their mobile, they can easily transfer the money to you. So it keeps a record and it allows you to share the bill easily. Best answer to cash on delivery hassle: रनिंग टू एटीएम और रेंडरिंग एग्जैक्ट अमाउंट। यानी यूपीआई से आपको क्या क्या फायदा है? पहला तो है कि कैश ऑन डिलीवरी का कोई हैजल नहीं है। सपोज मुझे कोई पेमेंट करनी है, कोई मैंने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगाया है, तो आई डोंट नीड टू बी वरिड कि जब आएगा, जब मुझे पेमेंट करनी होगी, मैं अगर घर नहीं होंगी तो कौन पेमेंट करेगा। मैं सीधा यूपीआई से पेमेंट उनको कर सकती हूँ और बाद में दे वुड डिलीवर द प्रोडक्ट टू माई एड्रेस। नेक्स्ट है एटीएम नहीं जाना पड़ता, कैश की नीड नहीं है। अब मुझे किसी को पेमेंट करनी है, मेरे पास कैश नहीं है, तो मुझे वहाँ पे एटीएम ढूंढना पड़ता था पहले, लेकिन अब नहीं है, मैं किसी को भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकती हूँ। नेक्स्ट है रेंडरिंग एग्जैक्ट अमाउंट। कभी कभी हमारे पास चेंज नहीं होता है, उसकी वजह से हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो यूपीआई के थ्रू आप एग्जैक्ट अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। मर्चेंट पेमेंट विद अ सिंगल एप्लीकेशन और इन ऐप पेमेंट्स। यहाँ पर हम इन ऐप पेमेंट्स भी कर सकते हैं या एक सिंगल एप्लीकेशन से। जैसे मैंने गूगल पे डाउनलोड कर रखा है, तो गूगल पे के थ्रू मैं कहीं पे भी, चाहे मैं मिंत्रा या अमेजोन या किसी और चैनल से ले रही हूँ, तो मैं सिर्फ गूगल पे को यूज़ करके उनको पेमेंट कर सकती हूँ। या फिर इन एप्लीकेशन पेमेंट भी हैं, जैसे अपनी ही आईडी को यूज़ करके मैं अमेजोन पे से पेमेंट कर सकती हूँ। तो ये कुछ फीचर्स भी अवेलेबल है। यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, यूपीआई आपको अलाउ करता है कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, फोन का बिल उसी एप्लीकेशन के थ्रू सीधा भर दीजिए। ओवर द काउंटर पेमेंट्स, काउंटर पे जाके आप स्कैन करके कर सकते हो। और स्कैन एंड पे, आपने देखा होगा, बी इट गोलगप्पे वाला और बी इट रिक्शा वाला, एवरीवन हैज देयर कोड, तो आप सिर्फ स्कैन करके सीधा पेमेंट कर सकते हैं। डोनेशंस इसके थ्रू हो रही हैं, आप टीवी में देखते हैं, कहीं डोनेट करना होता है अमाउंट, तो क्यूआर कोड वो वहाँ पर होता है, बस आपको स्कैन करके करना होता है। रेजिंग कंप्लेंट फ्रॉम द मोबाइल ऐप डायरेक्टली, अगर किसी की पेमेंट नहीं हुई है तो जिस एप्लीकेशन के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो वहीं पे ऑप्शन होता है कस्टमर सपोर्ट का, वहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली कंप्लेंट रेज कर सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स। एक बार पढ़ लो, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।
I think there is no question. Next हम पढ़ेंगे who all are the participants in the UPI. First of all, we have the payer PSP and the payee PSP. As the name suggests, payer PSP stands for the one who is sending the money. उनकी जो एप्लीकेशन है, सपोज मेरे फोन में गूगल पे है, आपके फोन में पेटीएम है, मैं गूगल पे से पेमेंट कर रही हूँ, तो वो गूगल पे जो है वो पेयर पीएसपी कहलाएगा. तो जो पे कर रहा है उसका पीएसपी, जो पेई है उसका पीएसपी. ठीक है. फिर है रेमिटर बैंक. रेमिटर बैंक यानी जो पैसा भेज रहा है मेरा बैंक, मैंने एसबीआई से पैसा भेजा है तो मेरा बैंक. आपका एचडीएफसी में अकाउंट है, वहां पे पैसा जा रहा है तो वो कहलाएगा बेनिफिशियरी. फिर एक पार्टी आती है एनपीसीआई, जो रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया की. वो हर तरीके की पेमेंट को, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को रेगुलेट करते हैं, तो वो एनपीसीआई कहलाएगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. फिर बैंक होल्डर्स, मैं और आप. देन वी हैव मर्चेंट्स, जो सामान को बेच रहे हैं या फिर जिसके थ्रू वो पैसा जा रहा है, तो मर्चेंट्स होते हैं हमारे पास. ये कुछ यूपीआई के थ्रू जब आप पेमेंट करते हैं तो ये सारी पार्टीज या पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. यूपीआई के बेनिफिट क्या है बैंक्स के लिए? बैंक को क्या फायदा है? एक तो सिंगल क्लिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है. तो बैंक में भी अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो ऑफ कोर्स बैंक को रिफंड करना पड़ता है या बैंक के ऊपर ब्लेम आता है. इसीलिए बैंक को बार बार ऑथेंटिकेशन ना करने पड़े, इसके लिए यूपीआई जो है वो सिंगल क्लिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करता है, जिसकी वजह से 2 बार यूजर ऑथोराइज हो जाता है पेमेंट के लिए और बैंक्स को बार बार टू एंड फ्रो नहीं करना पड़ता. नेक्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर द ट्रांजैक्शन. यानी बैंक्स को ये फायदा है कि कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो हर एक बैंक के लिए यूज होती हैं. तो अगर एप्लीकेशन ऐसी होगी जो एक ही बैंक के लिए यूज होगी तो फिर बैंक्स को नुकसान होगा कि वो किसके साथ कंपैटिबिलिटी बिठाए. लेकिन अब उनकी कंपैटिबिलिटी हर एप्लीकेशन के साथ है, इसलिए बैंक्स को भी फायदा है कि उनका पेनिट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, उनकी अकाउंट्स ज़्यादा खोले जा रहे हैं. सपोज एसबीआई कोई ऐसा बैंक अकाउंट होता जो किसी भी एप्लीकेशन में अलाउड नहीं है, तो फिर मैं बैंक में अकाउंट खुलवाती ही नहीं. तो उनके अकाउंट भी ज़्यादा खुलते हैं जब उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हर जगह होती है. नेक्स्ट है लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. यानी उनको अपनी एप्लीकेशन यूज करने की इतनी ज़रूरत नहीं है. जैसे चलो एसबीआई की तो यूनो एसबीआई है, ऐसी सब बैंक्स के. लेकिन अगर बैंक अपनी एप्लीकेशन में नहीं शुरू करना चाहता तो वो दूसरी एप्लीकेशन का फ़ायदा उठा सकता है. सेफर, सिक्योर्ड एंड इनोवेशन. दैट मीन्स जो यूपीआई है वो इतने पार्टिसिपेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इतनी ऑथेंटिकेशन की जाती है कि ये एक सेफर और सिक्योर और एक इनोवेटिव तरीका है पेमेंट करने का. पेमेंट बेसिस सिंगल यूनिक आइडेंटिफायर. यानी ये पेमेंट जो होती है वो यूनिक आइडेंटिफायर के तरीके से पेमेंट की जाती है. जैसे आपको एक एम पिन दिया जाता है या यूनिफाइड पेमेंट के लिए पिन दिया जाता है, जिससे एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है. इनेबल सीमलेस मर्चेंट ट्रांजैक्शंस. यानी जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं रियल टाइम बेसिस पे होते हैं, विद इन सेकेंड्स होते हैं, जिससे सीमलेस ट्रांजैक्शंस हो पाते हैं. तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं बैंक्स के लिए. फिर यूपीआई के बेनिफिट्स हैं कुछ कस्टमर्स के लिए. एक तो राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी होती है, यानी 24/7 365 days. Single application for accessing different bank accounts. You don't need to have different applications.
यूज वर्चुअल आईडी, तो अपना आपको IFSC कोड, नेम, अकाउंट नंबर शेयर करने की नीड नहीं है। सिंगल क्लिक ऑथेंटिकेशन है, यानी आप ऑथोराइज हैं, कोई और ऑथोराइज नहीं हो सकता आपके बैंक से पेमेंट करने के लिए। रेज कंप्लेंट फ्रॉम द मोबाइल एप्लीकेशन, यानी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसी एप्लीकेशन के थ्रू वहाँ पे आप कस्टमर केयर पे जा सकते हैं। नाउ वी हैव द बेनिफिट्स फॉर मर्चेंट्स, यानी जो शॉपकीपर्स हैं उनको क्या फ़ायदा है। तो उनको ये फ़ायदा है कि एक तो इजीली पेमेंट हो जाती है, उनको भी कैश के झंझट में नहीं पड़ना पड़ता। एक, जैसे हम डरते हैं अपना IFSC कोड या अकाउंट नंबर देते वक्त, ऐसे ही मर्चेंट्स भी डरते हैं, तो उनको भी वो शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। टैप कस्टमर्स नॉट हैविंग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, यानी जिनके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स नहीं है, सपोज मैंने कोई बैंक अकाउंट खुलवाया है और मेरे पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड की सर्विस नहीं है, तो भी मैं UPI के थ्रू वहाँ पे लॉगिन करके पेमेंट कर सकती हूँ। सुटेबल फॉर ई-कॉमर्स एंड M-कॉमर्स ट्रांजेक्शन, यानी इस तरीके की चीज़ें ई-कॉमर्स और M-कॉमर्स में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि वहाँ पर आपको कैश में आप इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते, आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में ज़्यादा बिलीव करते हैं। रिजॉल्व द COD कलेक्शन, कभी कभी क्या होता था, कैश ऑन डिलीवरी की प्रॉब्लम आती थी, आप पहुंच जाते थे, लोग नहीं मिलते थे, वहाँ से प्रोडक्ट वापस हो जाता था या कैश नहीं मिल पाता था, तो सारी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गई है। सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी उनके लिए भी है कि वो भी ऑथोराइज्ड होते हैं पेमेंट को रिसीव करने के लिए, और इन ऐप पेमेंट्स भी होती हैं, यानी जो आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो उसी के थ्रू आप UPI को अलाउ कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं मर्चेंट्स के लिए। Then you have the National Corporation of India. National Payment Corporation of India is the regulatory body that regulates each and every electronic payment of India. जब हम यहाँ से कोई भी पेमेंट है तो it is being authorized from there. So yani it can keep a track on each and every payment, and that is why the black money can be saved. It is an umbrella organization for operating retail payments and settlement system in India. Is an initiative of Reserve Bank of India. ये एक Reserve Bank of India का initiative है और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, यानी सारे बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पे एक पेमेंट सिस्टम बनाया गया है जो 2007 में स्टार्ट किया गया। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है NPCI की? NPCI owns and operates the unified payments, यानी जितने भी UPI प्लेटफॉर्म से कोई भी पेमेंट होती है वो सारी कौन रेगुलेट करता है? NPCI. NPCI prescribes rules, regulations, guidelines and respective roles, responsibilities and liabilities. यानी NPCI जो है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। जैसे ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगी, ये किसने रूल बनाया? NPCI ने बनाया। एक जगह से पेमेंट कैसे दूसरी जगह जाएगी, कितने चार्जेस होंगे, इसको लेके जितनी भी गाइडलाइंस रूल्स बनते हैं वो सारे NPCI बनाता है। NPCI approves the participation of issuer bank. NPCI डिसाइड करता है कि कौन सा बैंक उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा, कौन सा नहीं कर पाएगा, और कौन कौन से PSP बैंक्स होंगे, यानी कौन कौन सी एप्लीकेशंस काम कर पाएंगे। NPCI provides a safe, secure and efficient UPI system. वो it makes it sure कि ये safe हो, secure हो और लोगों का डेटा फालतू में हैक ना हो। NPCI provides online transaction routing, processing and settlement services to members participating in UPI. तो सबको प्रोसेस करता है, जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है किस रूट के थ्रू जाएगी, कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगी, कितने टाइम में होगी, तो वो सारे मेंबर्स को अप्रूव करता है। NPCI can either directly or through the third party conduct the audit. उसमें ऑडिट भी किया जाता है, जैसे गूगल पे है, पेटीएम है, इन सारी कंपनीज के जो ऑडिट होते हैं वो भी NPCI कराता है।
NPCI provides the bank participating in UPI access to the system where they can download the reports, raise chargebacks and update the status of the UPI transaction. यानी यहाँ पे ये अलाउ करता है बैंक्स को भी जो यूपीआई सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लाइक SBI, HDFC, ICICI, तो ये सारे बैंक्स जो हैं वो वहाँ से रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं कि उनके बैंक से कितनी पेमेंट हुई, कितनी नहीं हुई, कितना उनको फायदा हुआ, तो सारी रिपोर्ट्स वहाँ पे उनको मिल जाती है। ये एनपीसीआई का रोल है। ये सर्विसेज एनपीसीआई देता है। यूपीआई, यूएसएसडी, रुपे, भीम, AEPS, ये सारी सिस्टम जो हैं, ये सारे पेमेंट मेथड्स जो हैं, these are being regulated by the NPCI. और these are some of the recent awards and the recognition. तो NPCI को 2018 में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है और अगेन 2018 में ही पॉलिसी चेंज एजेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है इकोनॉमिक्स टाइम्स की तरफ से। तो ये NPCI जो है एक इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है that regulates the e-payment system in India. And with this we are done with the e-payments. मैं PPT अपडेट कर रही हूँ। Till then if you have any question you can ask there in the Q&A box and I am publishing the link with the PPT. PPT मैंने कल ही अपलोड लास्ट क्लास में अपलोड कर दी थी, मैं लिंक एक बार दोबारा शेयर कर लेती हूँ।
published the link. आप लिंक पर जाकर मेरे पीपीटीज ले सकते हैं, वहां पर सारी पीपीटीज अवेलेबल हैं अभी तक जो भी क्लास में डिस्कस हुआ है. मैंने लिंक पब्लिश कर दिया है. राजेंद्र जी, आप क्लास बंद कर सकते हैं.